Welcome student. Today I am going to discuss about secondary lymphoid organs. We have already studied about the primary lymphoid organs. Primary lymphoid organs as bone marrow and thymus. Classically bone marrow and thymus we say primary lymphoid organ because lymphocytes as B cell and T cell which born in bone marrow. B cell also mature in bone marrow, but T cells that born from the bone marrow and undergo to thymus for the maturation. So bone marrow and thymus as a classical primary lymphoid organs. So now let's start secondary lymphoid organ. So what is the secondary lymphoid organs? Secondary lymphoid tissues or organs are sites where lymphocytes interact with each other and non-lymphoid cells to generate immune responses to antigens. These include highly organized lymphoid organs such as lymph node, spleens, as well as less organized accumulations of lymphoid organ scattered strategically throughout the body. The latter includes like tonsils, appendix, Peyer's patches in the lining of small intestine. Under bracket हम देख सकते हैं a part of gut associated lymphoid tissues are GALT. जो GALT है that is the G for gut, A for associated, L for lymphoid and tissue for T. तो ये जो गाल्ट है इसमें हम जो है आपके लिए ये बताते हैं कि इसमें सारे जो हमने ऊपर एग्जांपल है टॉन्सिल भी कई तरह की होती हैं. तो टॉन्सिल, एडिनॉइड, अपेंडिक्स एंड पेयर्स पैचेस दे इंक्लूडेड इन द गाल्ट टाइप ऑफ secondary tissue, secondary lymphoid tissues. Next, lymphoid tissue beneath mucous membrane of bronchi that is known as BALT. BALT for branchial associated lymphoid tissue. ठीक है, B for branchial, A for associated, L for lymphoid and T is the tissue. So that is the lymphoid tissue beneath the mucous membrane of bronchi. And other aggregates of lymphatic tissue throughout the mucous membrane that is called MALT. Mucus associated lymphoid tissues are known as MALT. ठीक है, M for mucus, A for associated, L for lymphoid and T for tissues. And beneath the skin that is skin associated lymphoid tissue. स्किन के नीचे जो टिश्यू होंगी जो हमारी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह हेल्प कर रही हैं, काम करेंगी, जो एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन में काम इन्वॉल्व होगी, डिफेंस में इन्वॉल्व होंगी. दैट आर द साल्ट, SALT, S फॉर स्किन, A फॉर एसोसिएटेड, L फॉर लिम्फॉइड एंड T फॉर टिश्यू. तो ये हमारे गाल्ट, माल्ट, साल्ट, दीज आर द डिफरेंट पैचेज ऑफ टिश्यूज which are involved in the defense. They have B cells and T cells in patches, so called the secondary lymphoid organs. Okay, so main discussion of about highly organized lymphoid organ, that is the first of all we discuss about lymph node. Okay, so what is the lymph node? Lymph nodes are small encapsulated bean-shaped structure containing a reticular network packed with lymphocytes, macrophages and sensitive cells. Lymph nodes are the first highly organized lymphoid structure to encounter antigens that enter the tissue space. Lymph nodes filter substances that travel through the lymphatic fluid, and they contain lymphocyte, that is white blood cells, that help the body fight infection and disease. There are hundreds of lymph nodes found throughout the body. They are connected to one another by lymph vessels
Clusters of lymph nodes are found in the neck axilla, that is underarm, chest, abdomen, and groin. For example, there are about 20 to 40 lymph nodes in an axilla. Okay. Lymph nodes are encapsulated organ covered with dense connective tissue. These organs also contain capsular extension of connective tissue called trabeculae, which support the blood vessels entering the lymph node. Moreover, lymph enters to the lymph node through afferent lymphatic vessels, while it leaves the lymph node through efferent lymphatic vessels. The main function of lymph node is to filter pathogens, antigen presenting cells, soluble antigens, and a few amount of B cells from the lymph. Also, lymph nodes contain T and B lymphocytes, plasma cells, macrophages, and antibodies. Here, T and B lymphocyte make contact with antigen and become functionally specialized to produce an immune response specific to the antigen. Okay, so look here, the diagram of the lymph node. Here, the lymph node, that is the bean shape, encapsulated bean shape structure हम देख सकते हैं. आप ये देखिए, this is the bean shape structure. Bean shaped structure, and this structure is the afferent lymphatic vessels. Okay, so is the afferent lymphatic vessels. ये जो है हमारी बॉडी में जो लिम्फ फ्लो करता है ना, ब्लड से फिल्टर होके जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और WBC का एक कॉम्बिनेशन है लिम्फ, वो लिम्फ जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स प्लेसेस पे एक नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे न्यूड्स जिसको हम लिम्फ नोड कहते हैं, वहाँ से जो है वो लिम्फ उससे फिल्टर पास होता हुआ लिम्फ नोड में जाता है. और लिम्फ नोड जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है. ठीक, तो ये जो हमारी ओपनिंग्स है, दीज आर दी अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स. ठीक है, तो जो लिम्फ एंटर करता है वो इस वेसल्स के थ्रू. ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से लिम्फ जो है लिम्फ नोड्स में एंटर करेंगे थ्रू द लिम्फेटिक वेल्स. ओके, एंड इट लीव्स द लिम्फ नोड थ्रू दिस वन, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स. बात समझ में आ रही है? लिम्फ एंटर किया थ्रू अफरेंट, ठीक है ना, अफरेंट, AFFRENT, afferent, and it leaves the nodes, that is the by efferent artery. This आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, efferent lymphatic vessels and afferent, this is the afferent lymphatic vessels. Okay, तो आप कह सकते हैं this is a kidney shape structure. So here this one is the bean shaped spherical area and there is a notch hilux. ठीक है, ये जो है इसका एक जैसे किडनी में होता है ना हाइलस, वहाँ ये एक नॉच है, और जिससे क्या आपकी निकल रही है, ये एक आर्टरी और एक वेनस. आर्टरी के थ्रू जो है ये ब्लड इंटर करेगा और वेन से जो है बाहर आएगी. ठीक है, तो और इससे एक अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स भी पास हो रही है. तो आप इसको क्लियरली विजिबल इस डायग्राम में है. वन इज़ आर्टरी एंड अदर इज़ वेन एंड दिस इज़ द अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स. तो ये 3 चीज़ें दिख रही हैं. तो हमारा एक मेजर जो हमने क्या देखा कि जो लिम्फ है वो हम जो है वो एंटर करेगी आपकी लिम्फ नोड में थ्रू अफरेंट लिम्फेटिक वेसल और बाहर निकलेगी बाय इफरेंट आर्टेरियो, सॉरी इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स. ओके, तो अफरेंट से लिम्फ एंटर कर रहा है और इफरेंट से जो है वो बाहर आएगा. तो अब हमें क्या देखना है कि
structure of lymph node. So look here, this structure is encapsulated structure, highly connective tissue. ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है. दिस इज कनेक्टिव टिश्यू इनकैप्सुलेटेड. तो ये हमारा बाहरी जो है वो क्या है, कैप्सूल है, ठीक. एंड दिस नोड डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन, आप उसको कह सकते हैं. एक्चुअली हम कह सकते हैं एक तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला, दो ही में वो है ये मेडुला. तो सेंटर का जो जोन है उसको हम मेडुला कह रहे हैं और ये पूरा जो है हमारा कॉर्टेक्स है. अब कॉर्टेक्स का इनर पार्ट जो है हमारा पैराकॉर्टेक्स है. तो आप कह सकते हो कि 3 जोन्स ऑफ द lymph node. Outermost is the cortex and middle is the paracortex and innermost is the medulla. और अगर देखा जाए तो मेजर हमारा जो सेल्स है वो एक्चुअली हम डिटेल में अगर देखें तो दोनों ही डायग्राम को आपको पैरेलल समझना होगा. एक्चुअली लिम्फ नोड इज़ डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स. ये आपको चैम्बर्स दिख रहे होंगे, ये चैम्बर्स दिख रहे होंगे, कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है. तो ये कंपार्टमेंट्स कैसे बने, देयर इज़ अ एक्चुअली जो हमारा लिम्फ इंटर करता है तो उसके साथ एंटीजन्स भी इंटर कर सकते हैं. तो वो आप यूँ समझिए कि ये अगर आउटर लेयर है तो ये एक ट्रेबिकुली जो बन रही है, ठीक है. तो इससे जो है वो आपके जो है एक कॉर्टिकल साइनस बना रहे हैं. दिस वन इज़ द कॉर्टिकल साइनस. फिर उसके बाद जो है वो सब कॉर्टिकल साइनस इसके इस तरह से उसमें मूव करते हैं. तो ये हमारे जो है ये सारे जो है ये आपके ट्रेबिकुली हैं, ठीक. और ट्रेबिकुली जो है वो एक तरह से उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं. अब हमें देखना है कि अब यहाँ होता क्या है कि आप यूँ समझ लीजिए कि 3 आपके जोन हो गए. इस कॉर्टेक्स जोन में हमारा क्या है, मोस्टली बी सेल, मैक्रोफेजेस एंड सेंसिटिव सेल्स ये हमें प्रेजेंट हो, मतलब बी रिच जोन है ये. यहाँ पे जो है वो ये एक ऑरेंज है, ये जो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ द बी सेल्स. वो ऑर्गेनाइज्ड वे में बी सेल की फॉलिकल्स हैं. पैराकॉर्टेक्स दैट इज टी सेल जोन. यहाँ इस एरिया में पैराकॉर्टेक्स जोन में जो है वो टी सेल रिच कंडीशन होगी. और मेडुलर जो जोन है वहाँ पे जो है एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल होंगी. अब हम आगे देखेंगे कि ये कैसे हम इसको ये डिवाइड करके बता रहे हैं, ठीक है. ये डायग्राम आपको थोड़ा सा और भी एक्सपोज कर रहा है. ये हमारा कॉर्टिकल साइनसेस हैं, ये जो है ट्रेबिकुलिस जो एक्चुअली ये इसमें और डायग्राम हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा. एक्चुअली होता क्या है कि ये इस तरह से जो है ये ट्रेबिकुली बनती हैं और फिर इंटरकनेक्टेड हो जाती है, मेडुला से ही ये कनेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद जो है एक आपको ये जो जोन मिलेगा वो होता है आपका कॉर्टिकल साइनस. यहाँ पे वो जो है हमारी ऑफरेंट जो है के थ्रू जो है इंटर करती हैं. तो ये थोड़ा और डिटेल में स्टडी जब हो तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. बट ये इमेजिन करना होगा कि यहाँ जो पार्टीशन हो रही है, कंपार्टमेंट में डिवीज़न हो रहा है दैट इज़ ट्रेबिकुली. जो कैप्सूल की वॉल है वो इन्वेजिनेट करके उसको डिवाइड कर रही है और उसी के अलोंग जो है वो हमारी फ्लूइड जो है अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो लिम्फ है वो इंटर कर सकती है करेगी और एंटीजन भी उसके अलोंग जो है इंटर कर सकता है, ओके. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है. तो क्या क्या हो गया, ये हमारा अफरेंट हो गया, अफरेंट इससे इंटर हुआ लिम्फ नोड में. और ये सॉरी नॉट दिस, ये ब्लड वेसल पीछे से एक दिख रही है, ये हमारी है अफरेंट. तो इससे लिम्फ बाहर आ रहा होगा. इंटर करने का जो वे है वो क्या है, नंबर ऑफ अफरेंट लिम्फेटिक वेसल, बट लिम्फ come outside or leave the lymph node by the single afferent lymphatic vessel, okay.
अब इन सेंटर में क्या है, 3 जोन्स हैं, कॉर्टेक्स दैट इज बी सेल रिच जोन, पैरा कॉर्टेक्स टी सेल रिच जोन, एंड मेडुला इज द एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल रिच जोन। ओके, और ये हमारी जो ब्लड है वेसल्स हैं, आर्टरी और वेन्स। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रीफ में स्ट्रक्चर जो दिख रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड में हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये देखिए, जो बी सेल्स हैं वो एंटर करती हैं, ये हमारा लिखा हुआ HEV। HEV इज हाई एंडोथेलियल वेन्यूल। इससे एंटर करती है हमारी जो है बी सेल्स। ठीक है, और एंटीजन जो है वो इस साइनसेस से एंटर करता है, अफरेंट लिम्फेटिक वेसल से एंटर करता है। और ये आपको देखें, ये जो है ये साइनसेस बना रही हैं, इंटरकनेक्टेड है, ये बिल्कुल मेडुला से इंटरकनेक्टेड है, तो ये साइनसेस बन रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमें क्या और दिख रहा है। ये आप देखिए, यहाँ से जो टी सेल, ये बी सेल जोन है, ये बी सेल जोन है, ये टी सेल दिख रहा है, टी सेल एरिया है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम जब कह रहे हैं कि ए बी सेल एंटरिंग द लिम्फ नोड थ्रू ए हाई एंडोथेलियल वेन्यूल दैट इज HEV, इसके थ्रू जो है बी सेल एंटर किया। ओके, एनकाउंटर एंटीजन इन लिम्फ नोड कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ जो है एंटीजन के साथ एनकाउंटर होगा। एंटीजन वाज डिलीवर्ड इन द अफरेंट लिम्फ दैट ड्रेन फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू। इन्फेक्टेड टिश्यू से वो ड्रेन होता है और इस अफरेंट के थ्रू जो है एंटर करेगा। द बी सेल इज एक्टिवेटेड। अब ये जो बी सेल है यहाँ पे वो एक्टिवेटेड होती हैं बिकॉज देयर इज अ टी सेल। ओके, तो दे आर एक्टिवेटेड एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल। ठीक है, बी सेल इज एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल, दिस वन टी सेल जो ब्लू कलर का है वो हेल्पर टी सेल है। तो हेल्पर टी सेल दैट इज CD4 टी सेल के थ्रू जो है वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, एंड देन इन द टी सेल एरिया टू फॉर्म ए प्राइमरी फोक। तो ये जो है प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं ये आपको दिख रहा हो, यहाँ पे बन रहा है प्राइमरी जो फॉलिकल्स हैं वो जो है दीज आर द प्राइमरी फॉलिकल्स आर फोकस ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स। ये जो दिख रहा है आपको डिवाइडिंग सेल्स, ये यहाँ पे प्राइमरी सेंटर फॉर्म करती हैं। सो द बी सेल्स इज एक्टिवेटेड बाय CD4 T helper cells in the T cell area to form a primary focus of dividing cells. From this, some B cells migrate directly to the medullary cords. अब इसमें से अब देखिए यहाँ पे कुछ जो है आपको डायरेक्ट माइग्रेट कर रही हैं, यहाँ से डायरेक्ट माइग्रेट कर रही हैं एंड दे मॉडिफाई इनटू द प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल एज वी नो कि ये दे फॉर्म द एंटीबॉडीज़। अब वो एंटीबॉडी फॉर्म करेंगी, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि एंटीबॉडी रिच एरिया। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा सेल है दैट इज़ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल हो गई। तो ये हमारा मेडुला है, ये हमारा टी सेल एरिया है और ये बी सेल दैट इज कॉर्टेक्स, ये पैरा कॉर्टेक्स एंड ये मेडुलरी जोन। ओके, फ्रॉम दिस some B cells migrate directly to the medullary cords and differentiate into the antibody secreting plasma cell, and other B cells migrate into the primary follicle। और कुछ तो डायरेक्ट आ गई, कुछ जो है वो प्राइमरी फॉलिकल में की तरफ माइग्रेट हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जर्मिनल सेंटर फॉर्म कर बी सेल
कंटिन्यूइंग टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट विद इन द जर्मिनल सेंटर। ये जर्मिनल जो सेंटर है यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगी। एंड एक्टिवेटेड बी सेल्स माइग्रेट फ्रॉम द जर्मिनल सेंटर टू द मेडुला ऑफ द लिम्फ नोड और टू बोन मैरो टू कंप्लीट देयर डिफ्रेंशिएशन इनटू प्लाज्मा सेल। तो इस तरह से इसमें आपने देखा कि ये यहाँ से इंटर कर रही हैं HEV के थ्रू, दैट इज़ हाई एंडोथेलियल वेन्यूल के थ्रू बी सेल, और जो पैथोजेंस है या एंटीजेंस है दे इंटर इनटू द लिम्फ नोड थ्रू द एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। यहाँ पे वो एक्टिवेट होंगी, बी सेल्स एंड टी सेल्स एक्टिवेटेड, एंड बी सेल एक्टिवेटेड डायरेक्टली रीचेज टू द मेडुलरी जोन एंड फॉर्म द प्लाज्मा सेल दैट इज़ द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल। तो यहाँ डायरेक्टली एंटीबॉडी फॉर्म होंगी और फिर वो जो है इसके थ्रू लिम्फेटिक इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू बाहर आ जाएंगे और वो फिर से वो लिम्फेटिक वेसल्स के साथ जो है वो ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट कुछ जो सेल्स होंगी बी सेल्स वो माइग्रेट करके यहाँ पे जो है वो जर्मिनल सेंटर में प्रोलिफरेट करती हैं और फिर वो भी आपकी इसी पाथ से जो है बाहर जाएंगी। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो एक तरह से एक जॉब जो है एंटीजन का जो इंटरेक्शन है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मूवमेंट है एंटीजन का वो कहाँ से होगा, वो लिम्फ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बाहर से ये अफरेंट लिम्फेटिक वेसल से होता हुआ वो आपका कॉर्टिकल साइनस, सब कॉर्टिकल एंड कॉर्टिकल साइनसेस होते हैं। इस तरह से कॉर्टिकल साइनस, ओके, देन मेडुलरी साइनस, and then efferent lymphatic vessel से बाहर होगा। तो ये अफरेंट से एंटर किया लिम्फ और इफरेंट से जो है बाहर आ गया। इन बिटवीन ये जो बीच में है यहाँ जो साइनसेस हैं जो एक दूसरे ये पूरे कनेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे एक सब कैप्सुलर भी होगा और सब कैप्सुलर साइनसेस, कॉर्टिकल साइनसेस, मेडुलरी साइनसेस एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। ये जो हमें डायग्राम दिख रहा था वो उससे कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह से वो यहाँ पे जो एंटीजेंस हैं उससे इंटरैक्ट होंगे और एज इट इज़ जैसा हम लोगों ने एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में देखा था वो उस तरह से एक्टिवेशन होगा, बी सेल टी सेल का इंटरेक्शन होगा और बी सेल मैच्योर होंगी और बी सेल के मैच्योरेशन के बाद जो है वो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से जब एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएंगी तो नेचुरली हमारी जो पैथोजेंस है एंटीजेंस है उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा एंड देन सब मेमोरी सेल्स भी फॉर्म होंगी। तो ये ब्लड सर्कुलेशन में जो है प्लाज्मा सेल्स जो है मूव करने लगेगा। So that is the path of the lymphocytes in the secondary lymphoid organ, that is a lymph node. Okay, so that is the